Hello students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. Hope you have completed all the questions of rational numbers and you didn't find any problem in that. Now the next chapter of mathematics is squares and square roots. What is squares? Next chapter is squares and square roots. Before discussing the square roots, we will discuss about the topic squares. What are squares? Let a number is a. अगर कोई नंबर a है तो उसका स्क्वायर कैसे लिखा जाता है? जब उसकी पावर को अगर हम 2 लिखते हैं तो इट मीन्स दैट इज अ स्क्वायर. ठीक है. a and it means when number a is multiplied by the same number a, then we get a square. For example, let the number be 3. When 3 is multiplied with 3, then it is also written as 3 square and the answer comes out to be 9. Right. Similarly, you can find out the square of any number. 9 when multiplied by 9, it can also be written as 9 square. 9 square means when the number is multiplied with the same number, then it is written 2 times, then it is written as square. 9 when multiplied by 9, we got the answer 81. Similarly, if we talk about 2 multiplied by 2, it is written as 2 square and the answer comes out to be 4. 4 multiplied by 4, written as 4 square, then answer comes out to be 16. 5 when multiplied by 5, it is also written as 5 square and the answer comes out to be 25. 6 when multiplied by 6, it is also written as 6 square and answer comes out to be 36. 7 when multiplied by 7, it is also written as 7 square and answer comes out to be 49. 8 when multiplied by 8, it is written as 8 square and the answer comes out to be 64. 9 is also previously written, and 10 when multiplied by 10, the answer comes out to be 100. It is also written as 10 square and the answer comes out to be 100. This is the way to find a square of a number. Now if we talk about the next one, what about the 11 and 12 and so on? 11 square, it is also written as 11 multiplied by 11, 121. 12 square is 12 multiplied by 12, answer comes out to be 144. 13 square means when 13 is multiplied by 13, then answer comes out to be 169. 14 square, when 14 is multiplied by 14, then answer comes out to be 196. 15 square is 15 when multiplied by 15, then answer comes out to be 225. When 16 square is when 16 is multiplied by 16, then answer comes out to be 256. And 17 square, when 17 is multiplied by 17, answer comes out to be 289. 18 square, when 18 is multiplied by 18, then answer comes out to be 324. 19 square, 19 when multiplied by 19, then answer comes out to be 361. And when 20 square means 20 when multiplied by 20, then answer comes out to be 400. This is all about the square of a number. From 1 to 20, I have written all the squares of all the numbers. Okay, from this conclusion, we will draw that if unit place
contains the digit 2, 3, 7, 2, 3, 7 एंड 8। अगर यूनिट प्लेस पर ये 4 डिजिट्स हैं, देन that number is not a perfect square, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मैंने 1 से 20 तक के यहाँ पर सारे नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। 1 का भी अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1, ठीक। यूनिट प्लेस इफ यू चेक कि उसमें 2, 3, 7 और 8 इनमें से किसी नंबर पे है, यहां से अगर मैं वापस चेक करना शुरू करती, 20 पे नहीं है, 19 पे एंड सो ऑन, यहाँ पर 2, 3, 7 एंड 8 किसी के भी यूनिट प्लेस पर नहीं है। तो इसका मतलब बाकी आगे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां से ये पता चलेगा कि 2, 3, 7 एंड 8 किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर? एक नंबर m है, वो परफेक्ट स्क्वायर तभी है तब उसके लिए कोई नंबर n एग्जिस्ट करता है, when the number n is multiplied by n we got the answer m, ठीक है। तो उस केस में m is a perfect square। अगर मैं बात करती हूं, मैंने एक नंबर ले लिया randomly 133 having 3 at the unit place, यूनिट प्लेस पर क्या है, 3 है, तो इस ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 133 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड आउट इट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका क्वेश्चन मार्क जो है वो कैसे पता चलेगा? अभी मैंने 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स जो है वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है। उनका सबका परफेक्ट स्क्वायर जो है, उनका सबके स्क्वायर्स जो है वो बोर्ड पर लिखे हैं। फाइंड आउट वेयर 133 लाइज, 133 लाइज बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, यहाँ कहीं 133 आएगा, ठीक है। बट 11 इज अ नंबर एंड 12 इज अ नंबर, इन बिटवीन यहाँ पर 11 और 12 के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो 133 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली इफ वी कैन राइट एनी नंबर हैविंग यूनिट प्लेस पर जो है वो 8 डिजिट है, ठीक है, 8 है, तो उस केस में अगर मैं लिखती हूं देन ऑल्सो लाइक 158 और 152 आई हैव रिटन, इज दे परफेक्ट स्क्वायर? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं? यूनिट प्लेस पर इसमें 8 है, इसमें 2 है, बट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या कह रही है कि अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 जो है वो नंबर है तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, बट लेट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट लेट अस ट्राई कि whether they are perfect square or not। 158 जो है वो क्या है, 13 के स्क्वायर से कम है, 13 का स्क्वायर क्या है 169 एंड 12 का स्क्वायर क्या है 144, तो 158 एंड 152 इन बिटवीन दिस नंबर लाई करेंगे, तो इट मीन्स 12 का नंबर होल स्क्वायर भी जो है वो 152 नहीं है, ना ही 158 है, 13 का स्क्वायर भी जो है वो भी ये दोनों नंबर नहीं है, तो 12 एंड 13 आर होल नंबर और 12 और 13 के बीच में और कोई होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगर कोई नंबर इवन है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर जो है वो भी क्या होगा, इवन होगा। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। फ्रॉम 1 to 20 वी ट्राई टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। 1 इज अ ऑड नंबर, स्क्वायर इज ऑड, 3 is a odd number, square is odd, 9 is a odd number, square is odd, 2 is a even number, square is even, 4 is a even number, even, square is even, 5 is odd number, square is odd, 6 is even number, square is even, 7 is a odd number, square is odd, 8 is a even number, square is even, 10 is a even number, square is even, ठीक है।
लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम 11 to 20 आल्सो। 11 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। 121 इज ऑल्सो ऑड नंबर। 12 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। 144 इज ऑल्सो इवन। 13 जो है वो ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड है। 14 इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है। 15 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड है। 16 जो है वो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन है। 17 इज अ ऑड नंबर, स्क्वायर ऑड है। 18 इज अ इवन नंबर, उसका स्क्वायर भी इवन नंबर है। 19 इज अ ऑड नंबर, उसका स्क्वायर भी 19 इज अ ऑड नंबर, उसका स्क्वायर भी ऑड है। नेक्स्ट 20 इज अ इवन नंबर, उसका स्क्वायर भी इवन है। तो इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि एक इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन होता है और एक ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड होता है, वी प्रूव्ड इट। ठीक है। Now the third property is, what does the third property says? Third property says the square of a natural number other than 1, अगर 1 को छोड़ दिया जाए उसके अलावा किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है, that is other than 1 is a multiple of 3। ठीक है, वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा और या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 by 1 मीन्स अगर किसी नंबर के स्क्वायर को मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो है वो आइदर 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, यही आएगा। लेट मी ट्राई। अगर 1 को छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट 1 ऑल अदर नंबर्स। 3 का स्क्वायर क्या है, 9। व्हेन डिवाइडेड, यहां पे डिवाइड करते हैं इसको किससे, 3 से। इस तरफ ट्राई करती हूं मैं इसको लिख करने की। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल फाइंड, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज एक्सेप्ट 1, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू ऑल नंबर्स। 3 का स्क्वायर क्या है, 9। व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 3 देन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। ठीक है। 81 when divided by 3 then also remainder comes out to be 0। apply the property of divisibility। ठीक है, when 4 is divided by 3 remainder comes out to be 1। when 16 is divided by 3 remainder comes out to be 1। when 25 is divided by 3 remainder comes out to be 1। when 36 is divided by 3 remainder comes out to be 0। when 49 is divided by 3 remainder comes out to be 1। when 64 is divided by 3 remainder comes out to be 1। when 100 is divided by 3 remainder comes out to be 1। Similarly, on the right hand side if we try, 121 when divided by 3 remainder is 1। 144 when divided by 3 remainder is 0। 169 when divided by 3 remainder is 1। 196 when divided by 3 answer is 1, remainder is 1। 225 when divided by 3 remainder is 0। This when divided by 3 remainder is 1। 289 when divided by 3 is 6 remainder is 1। 324 when divided by 3 then remainder comes out to be 0। 361 when divided by 3 remainder comes out to be 1। when 400 is divided by 3 remainder comes out to be 1। means a number which is a perfect square, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, अदर देन 1 अगर कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा दैट इज रिमाइंडर जो होगा वो आइदर 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द way to find out whether the number is a perfect square or not। ठीक है। now the next property is in the square of a number, किसी नंबर का स्क्वायर जिस नंबर के यूनिट डिजिट, उस नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ऑलवेज कंटेन करेगा इवन नंबर ऑफ जीरोस at the unit place and tens place and so on। like एक नंबर था 10,
ठीक है, तो उसके स्क्वायर में क्या है, मेरे इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, यानी कि जीरो जो है वो क्या है, 2 है। सिमिलरली 20 जो है उसके स्क्वायर में भी क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं। सिमिलरली इफ वी कैन फाइंड आउट 100 का स्क्वायर, देन ऑल्सो द आंसर कम्स आउट टू बी, इट ऑल्सो कंटेन्स इवन नंबर ऑफ जीरोज, इसमें भी क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोज है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी which says that if a number is having zero at unit place, then its square contains the even number of zeros, तो उसके स्क्वायर में क्या होंगे, even number of zeros होंगे। अब let us try to find out कि whether the given number is a perfect square or not. This is what we write on the squares of a number. 1 to 20 मैंने सिर्फ इसलिए राइट किया है ताकि ये जो है ये आपके टिप्स पे हो कि 1 to 20 जो है वो स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं। नाउ उससे पहले एक और प्रॉपर्टी अगर मैं बताती हूं, वो क्या है कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर पे भी क्या होगा, यूनिट प्लेस पर 0 होगा, यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट पर किसी नंबर के 1 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर प्लेस पर भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अभी हमने देखा था, यहां बोर्ड पर लिखा हुआ था 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 91, सॉरी 9 स्क्वायर इज ऑल्सो 81, बोथ द डिजिट। यहां पर मैं लिख यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, ठीक है, यहां लिखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ ए ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, यूनिट डिजिट पर 0 है नंबर के, तो आंसर जो है उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 0 होगा। लाइक मैंने एग्जांपल लिया था 10 का, 10 में क्या है, यूनिट डिजिट पर 0 है, तो स्क्वायर जो है दैट आल्सो कंटेन्स 100, उसके यूनिट डिजिट पर 0 है। अगर यूनिट डिजिट पर 1 है, ठीक, अभी यहां पर लिखा हमने एक एग्जांपल, 1 का स्क्वायर इज 1, 9 का स्क्वायर इज ऑल्सो 81। अगर यूनिट डिजिट पर नंबर के 1 और 9 कुछ भी है, दोनों में से कोई भी नंबर, तो उसके यूनिट डिजिट पर, स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट पर 2 और 8 है, ठीक है, 2 और 8 का एग्जांपल लेते हैं। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, दोनों के यूनिट डिजिट पर क्या है, 4, तो यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नाउ द थर्ड इज, अगर यूनिट डिजिट पर 3 है या फिर 7 है, 3 का स्क्वायर इज 9, 7 का स्क्वायर इज 49, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट पर 4 है या फिर 6 है, 4 है या फिर 6 है, देन 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36। I give you small example so that you can calculate it very fast. This property is applicable to any number, whatever may be the size of the number, whether that number is in thousands or that number is in hundreds or that number is in tens, that doesn't matter। 4 और 6, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 6 है तो इट मीन्स that number may or may not be perfect square having the number at unit place 4 or 6। ठीक है, अब आता है नंबर 5। अगर नंबर 5 है तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर इज 25। इससे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी,
व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर यूनिट डिजिट पे 2 है, 3 है, 7 है एंड 8 है, दैट नंबर कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वो भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, पता चल गया, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 एंड 8 हैं, इनमें है कहीं 2, 3, 7, 8 नहीं है, तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। अब किसी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास काफी सारे मेथड होते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड द कॉमन एंड द इजीएस्ट मेथड इज पर फैक्टराइजेशन, कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 63504 63504 ये एक नंबर दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है, तो इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 63504 first and the easiest is when the number is having even number at the unit place divided by 2 से उसको डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पर यहां क्या आता है, 3, 1, 7, 5, 2 यही आएगा। When this is all again 2 comes at the unit place, divide it again by 2, 1, यहां बच गया 1 रिमाइंडर, 11, 5, फिर से 1 रिमाइंडर, 8, 7 and 6, 1, 5, 8, 7, 6. This is what I am writing the quotient. Remainder comes out to be 0 here also 0. Now the next is again having 0, even number at the unit place, divide it again by 2. This comes out to be 7, 18, 9, 3, 8. Remainder comes out to be 0. When this number is divided by 2, the remainder comes out to be 0 and the quotient comes out to be 7938. When again divided by 2, then the quotient comes out to be 3, 9, 6, 9 and the remainder comes out to be 0. Now the unit place doesn't contain the even number. Let us try to find out some other number which can divide this 3969. Now the very next number higher than 2 is 3. Let us try to find out whether 3 can divide this number or not. How the divisibility of 3 can be checked? When the digit of the number, all digits of the number are added, then the answer added sum of the number is divided by 3 or not. 9 plus 6 is 15, 15 plus 9 is 24, 24 plus 3 is 27, 27 is divisible by 9, so it means that this number is divisible by 3, so I can divide this number by 3. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं? बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है? नंबर की हर एक डिजिट को ऐड करो। हर एक डिजिट को ऐड करने के बाद यहाँ क्या आएगा? 3 plus 9 plus 6 plus 9, that comes out to be 9 plus 6 is 15, 15 plus 9 is 24, 24 plus 3 is 27. That 27 is divisible by 3, so it means this number is divisible by 3. On dividing this number by 3, I got the answer 1, 3, 2, 3 and the remainder comes out to be 0. Now again 1, 3, 2, 3 is divided by 3 or not? 1 plus 3 plus 2 plus 3. The answer comes out to be 9. 9 is divisible by 3, तो इसका मतलब है कि 1, 3, 2, 3 भी जो है वो 3 से डिवाइड होगा। डिवाइडेड बाय 3, 4, 4 and 1 and remainder comes out to be 0. Now in the next case 4, 4, 1. Find out the sum of 4 plus 4 plus 1. Answer comes out to be 9 and 9 is divisible by 3. So divide this number by 3. इसको फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं।
1, 4 and 7. ठीक है, रिमाइंडर इज 0. नाउ अगेन ट्राई फॉर 1, 4, 7. This comes out to be 12. 12 is divisible by 3. So 147 is divisible by 3. Divided by 3. 4 and 9. Remainder comes out to be 0. Now try this. 9, 4 and 9. 4 plus 9 is answer comes out to be 13. 13 is not divisible by 3. So 13 को छोड़ दो. अब 49 को छोड़ दो, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ 4 की टेबल. 4 की टेबल में हमने अभी पढ़ा था कि इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है वो इवन होता है. तो यहाँ पर जब ये डिजिट यूनिट डिजिट मेरे पास ऑड नंबर है तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगी. 5 की टेबल का मल्टीपल कौन सा होता है? जो 4 और 5 की टेबल जिसमें यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आता है, तो ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. 6 की टेबल की बात करते हैं तो 6 की टेबल में फाइंड आउट करने के लिए क्या है, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए. ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इट मींस ये 6 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट नंबर कम्स आउट टू बी 7. At the table of 7, 49 comes out at the number 7. 7 sevens are 49, that is 0. Remainder is 0. When the 7 is divided by 7, then quotient comes out to be 1 and the remainder is 0. ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब यह है कि 63504 जो हमने नंबर लिया था दैट इज परफेक्ट स्क्वायर. वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो 6350 के जो फैक्टर्स बने हैं वो क्या क्या हैं? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 4 times 2 and 4 times 3. 1, 2, 3, 4 and 2 times 7. When we try to find out the perfect square find out करना है तो मुझे क्या करनी है? इन नंबर्स की दो में पेयरिंग करनी है. मीन्स दो नंबर्स का सेम नंबर्स का एक पेयर बना दूंगी मैं. दिस उस पेयर में से एक नंबर जो है वो हम बाहर लेंगे. 2. दिस कम्स फ्रॉम दिस अगेन 2. नाउ इस पेयर में से 3, नेक्स्ट पेयर में से 3 एंड नेक्स्ट पेयर में से 7. 2 2 जा 4, 4 multiply by 3, 4 multiply by 9, 3 3 जा 9 multiply by 7. 9 4 जा 36 multiply by 7 and the answer comes 36 multiplied by 7, then the answer comes out to be 252. You can find out 7 6 are 42, unit place पर 2 carry गया 4, 7 3 are 21, 4 carry था 25. So 63504 is a perfect square of 252. 252 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वहां से क्या आता है? 63504. अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं. मैंने कहा था अगर नंबर इवन है, नंबर जो है वो क्या है? इवन है. ठीक है, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 2 है, तो नंबर ऑब्वियस सी बात है इवन है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा? इवन होगा. हो गया सेटिस्फाई. अब 63504 को अगर मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आइदर 0 आएगा या 1 आएगा. ठीक है, तो 5 plus 4 is 9, 9 plus 3 sorry 9 plus 3 is 12, 12 plus 6 is 18. 18 जो है वो नंबर क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है. 3 से डिवाइड होगा तो इस मीन्स ये नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3. इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं. जब इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0. तो वो रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे पास 0 आएगा. ठीक, ये चीज भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई. अब कंडीशन यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 में से भी कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था, तो वो भी फाइंड आउट हो गया. अभी इससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर, उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 4 है तो दैट नंबर इज आइदर अ परफेक्ट स्क्वायर. उसके मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर का होगा जिसके यूनिट डिजिट पर क्या हो? या तो 2 हो या फिर मेरे पास क्या हो? 8 हो. तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई
कि ये जो है इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 2 है। इस तरीके से अपने बुक में जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, प्लीज post the query in the comment box. That is all for today about the square and how to find out कि whether the given number is a perfect square or not. ठीक है, please like, share and subscribe the channel of Hari Science and Maths Academy. Thank you.